Hello students, let's continue our studies and it is the second part of the lesson Ranga's Marriage of Supplementary Reader class 11th English written by Masti Venkatesh Iyengar, presented by SK Jain PGT English JNB Katni MP. We have completed half part of the lesson and we have seen that when narrator asked Ranga about marriage, he presented his views about marriage. So, what were Ranga's views about marriage? Can you recall? Type in the comment box if you recall. Now, let's try to understand what happens in the story next. Ranga's views about marriage. Narrator asked Ranga, "When do you plan to get married?" Ranga answered, "I am not going to get married now." Ranga's reasons or conditions for not getting married are: first, Ranga said, "I need to find the right girl." Second, the girl should be mature. Third, a man should marry a girl he admires. So there were many ifs and buts, there were many conditions for marriage as told by Ranga. So narrator made up his mind that he would get Ranga married. Narrator decides to get Ranga married because narrator thought that Ranga is a good human being and if he will be married, then he will be of more use to the society. When he will marry, when he will settle down, so he will be of much use to society. सो दिस वी हैव बीन रीडिंग कि रंगा के क्या विचार थे मैरिज के बारे में कि रंगा ने ये कहा था कि जब सूटेबल गर्ल मिलेगी और गर्ल मैच्योर होना चाहिए, एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ऐसी लड़की से किसी को शादी करना चाहिए जिसके गुण उसको पसंद आते हों, जिसकी वह प्रशंसा करता हो। नरेटर ने सोच लिया कि वह रंगा का विवाह कराएगा और करा के रहेगा। नाउ लेट्स know about the heroine of the lesson, Ratna. Who was Ratna? Rama Rao's niece Ratna was a pretty girl of 11. She had come to stay with him. She was from a big town. She knew how to play veena and harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died. Her uncle Rama Rao had brought her home. रत्ना कौन थी? रामा राव की भतीजी। रत्ना 11 ईयर की एक सुंदर लड़की थी और वह रामा राव के घर रहने आ गई थी और वह बड़े शहर से बिलोंग करती थी और वह बीणा हारमोनियम प्ले करना जानती थी। उसकी बहुत अच्छी मधुर आवाज़ थी। सी हैड अ स्वीट वॉइस। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी, इसलिए उसके रामा राव अपने घर ले आए थे पालन पोषण करने के लिए। सो you must be now familiar with Ratna. Let's continue. One day, narrator calls Ratna to his house. Narrator went to Rama Rao's house. He told Rama Rao's wife that he would send buttermilk, so she should send Ratna to fetch it. Ratna came to narrator's house. She was wearing a grand sari. Narrator told her to sit in his room and requested to sing a song. In the meantime, narrator sent for Ranga. तो नरेटर ने रत्ना को अपने घर बुलाया। एक दिन क्या हुआ, नरेटर रामाराव के घर गए और रामाराव की पत्नी घर में थी। उनसे कहा कि मेरे घर में बटर मिल्क है, रत्ना को भेज देना बटर मिल्क लेने के लिए, तो मैं भेज दूंगा। तो रामाराव की वाइफ ने रत्ना को नरेटर के घर भेजा और शुक्रवार का दिन था। रत्ना बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, अच्छी लग रही थी और रत्ना नरेटर के घर आई। नरेटर ने रत्ना को बैठने के लिए कहा और कहा कि उसको एक गाना गा के सुनाए। तो रत्ना ने एक गाना गाया, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, और इसके साथ हारमोनियम भी बजाया। इसी दौरान
नरेटर ने रंगा को भी अपने घर बुला लिया। नाउ रंगा रीचेज द नरेटर्स हाउस। Ranga saw Ratna. Ranga came to narrator's house. He heard Ratna's voice from outside. He didn't wish to disturb the singing, so he stopped at the threshold. But he wished to see the singer. He peeped carefully. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up. Seeing a stranger, she abruptly stopped singing. रंगा जब नरेटर के घर पहुंचा तो उसने रत्ना की आवाज़ को सुना। रत्ना कुछ गा रही थी। बाहर से ही रत्ना की आवाज़ सुन के रंगा को अच्छा लगा। वह गाने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन वह गाने वाले व्यक्ति को देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू सी द सिंगर। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। वह घर की दहरी पर ही, डोर स्टेप पर ही रुक गया। चूँकि वो रत्ना को देखना चाहता था, यानी कि कौन गा रहा उसको देखना चाहता था, इसलिए उसने घर के अंदर झांका। ही पीप्ड केयरफुली। लेकिन उसके घर के अंदर झांकने से घर के अंदर आने वाली लाइट में बाधा पड़ी और शैडो बनने से रत्ना ने देखा कि कोई है और उसने गाना बंद कर दिया। रत्ना लुक्ड अप, सीइंग अ स्ट्रेंजर, शी अब्रप्टली स्टॉप्ड सिंगिंग। तो अचानक रत्ना ने गाना बंद कर दिया। रंगाज क्यूरियोसिटी। रंगा ने नरेटर से पूछा, डिड यू कॉल मी? इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव। रंगा ने नरेटर से पूछा कि आपने मुझे बुलाया और मेरे आने से गाना बंद हो गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, लेट मी लीव, मुझे जाने दीजिए। रंगा ने ये कहा कि वो जाएगा, लेकिन वो गया नहीं। ही डिड नॉट लीव। रत्ना रैन इनसाइड, ओवरकम बाई साइनेस। रत्ना को शर्म आ गई और रत्ना अंदर चली गई। रंगा आस्क्ड, हु इज़ दैट गर्ल? रंगा ने नरेटर से क्या पूछा, वह कौन लड़की है जो गा रही थी? नरेटर ने क्या उत्तर दिया? नरेटर रिप्लाइड, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सीज आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड। Ranga hopefully asked, she isn't married then? Narrator said, she was married a year ago. Ranga's face shriveled like a roasted brinjal. He said, I must go, I have work at home. तो रंगा के आने से गाना रुक गया था। रंगा ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने से गाना रुक गया, लेकिन वो गया नहीं। रत्ना साइनेस के कारण अंदर चली गई। रंगा ने नरेटर से पूछा, वो कौन लड़की है? नरेटर ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन लड़की है, क्योंकि मैं पहले से विवाहित हूँ और तुम्हारा विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रंगा ने तब होपफुली ये कहा कि इसका अर्थ है कि वह लड़की अभी विवाहित नहीं है, लेकिन नरेटर ने कहा नहीं नहीं, उसकी शादी पिछले साल हो चुकी है। नरेटर का चेहरा वैसे ही सिकुड़ गया जैसे कि एक भुंजा हुआ बैगन सिकुड़ जाता है। श्रिबल्ड लाइक अ, हाँ, तो रंगा का चेहरा सिकुड़ गया, वह अपसेट हो गया, उदास हो गया और उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे घर में कुछ काम है, ऐसा कह के रंगा चला गया। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको एक पिक्चर दिख रही है रत्ना की, यहाँ हारमोनियम प्ले कर रही थी, वो उठ के यहाँ आ गई है। यहाँ पर स्वामी यानी नरेटर और रंगा बैठे हुए हैं। नरेटर टॉक्स टू शास्त्री। नरेटर मेट शास्त्री एंड टोल्ड हिम टू कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। ये वाला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और कहानी के अंतिम मोड़ तक पहुंचेंगे। टिल देन यू कंटिन्यू स्टडी एंड कीप वाचिंग द वीडियो, कीप hitting the like button and share and subscribe, hit the bell icon so that you get the notification. Thank you very much for watching. Have a nice day.